Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another session where we are covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 17 till CAT 2024. Today I'll be taking you through CAT 17 slot 1 का एक बहुत interesting set which is a mixture of distribution, allocation, ordering, sequencing, maybe even quant based reasoning. सबका combination है, बहुत interesting है. Let's have a look and decide whether our FATE framework helps us pick this set in the exam or not. So there are 21 employees working in a division out of whom 10 are special skilled, remaining are regular skilled. तो 10 और 11 का division है 21 employees, 10 special, 11 regular. During the next 5 months, the division has to complete 5 projects every month. अगले 5 महीने में division को 5 projects हर महीने complete करने हैं, मतलब total 25 projects. 5 projects are challenging and the remaining are standard. तो 20 standard हैं, 5 challenging है. Each of the challenging projects, so you need to allocate different projects, different types of categories in challenging and standard, 5 months, and then there are teams, 5 teams along to go with it. So in terms of familiarity, I'll say this is familiar territory. Allocation karna hai, should not be too difficult. Number is also 21, 10, 11 ka distribution. Ambiguity of clues. Now if you look at clues, there is overwhelming data. मतलब it's not pretty straightforward. आप एकदम से structure भी नहीं कर पा रहे कि अब मैं 25 के लिए मैट्रिक्स कैसा बनाऊं, 5 months, 5 teams, 25 boxes, so it is slightly overwhelming. And then there is still a lot of data left. In the first month T1 has one more SE than T2, T2 has one more, ठीक है, वहां से शायद कुछ वैल्यूज निकला है फर्स्ट मंथ की. And between 2 successive months the composition changes as follows. The team which was allotted the challenging project gets 2 SE from the team which was allotted the challenging project in the previous month. तो slightly challenging set of overwhelming data ऐसा बोल दूं मैं. I'll say ambiguity में टिक नहीं है मेरे पास. This will require some amount of time and therefore time consumption में भी I'll say कि this is not one of those sets जो मैं पिक करूं, because उतना सब करने के बाद each standard project has a total of 100 credit points और credit point को लेकर भी question दिख रहा है ना. And number of times in which the composition of team sets change, तो एक्स्ट्रा इन्फो तो नहीं है. कैन नॉट बी ट्रू वाली कैटेगरी है तो पॉसिबिलिटीज शायद बन सकती है, बट एक्स्ट्रा इन्फो नहीं है. सो आई विल से दिस इज अ टिक. बट 2 चीजों के कारण आई विल से कि दिस इज नॉट वन ऑफ दोस सेट्स दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू पिक इन द एग्जाम, प्राइमरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरवेलमिंग डेटा. बहुत सारा डेटा है और शायद सॉल्व हो भी जाए, बट टाइम तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा लगेगा. सो नॉट वन ऑफ द सेट्स. इनफैक्ट एक जनरल थंब रूल, if you find a set time consuming, just keep it for the end. मतलब बहुत सिंपल है. फेट फ्रेमवर्क से हम एनालिसिस करके बेटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट कोई भी सेट टाइम ले रहा है तो 40 मिनट का टाइम है हमारे पास कैट में, एंड यू डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट. जस्ट स्किप दैट सेट जिसमें टाइम लग रहा है कि ज्यादा लगेगा. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कैसे बिल्ड करें, स्ट्रक्चर कैसा करें. सो 21 employees. So what I'm going to do is I'm going to just write down quick summary and then decide on a particular structure कि टेबल बनाना है तो टेबल कैसे बनाना है, and then we'll move ahead and actually fill the data in the table if required. पहले स्ट्रक्चर कर लेते हैं. There are 21 employees working in a division out of whom 10 are special skilled employees. तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं कि 21 employees हैं, इसमें से स्पेशल जो employees हैं वो 10 हैं और रेगुलर employees 11 हैं. ठीक है, so we're done with this. Let's look at this. During the next 5 months, the division has to complete 5 projects. Out of 25 projects, 5 are challenging and the remaining are standard. तो आपके 25 projects हैं. 25 projects में से 2 कैटेगरीज हैं आपके पास, या तो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है या स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है. चैलेंजिंग 5 है और स्टैंडर्ड 20 है. टोटल 25 है. तो ईच ऑफ द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैज टू बी कंप्लीटेड इन डिफरेंट मंथ्स. तो हर एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट अलग अलग मंथ में कंप्लीट होगा. एवरी मंथ 5 टीम्स वर्क ऑन 1 प्रोजेक्ट ईच. हर महीने में 5 टीम्स काम करती हैं एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर. 5 टीम्स एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है. सो विच मीन्स जस्ट टू स्ट्रक्चर दिस आई कैन से मंथ 1 में देयर विल बी टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5. तो हर एक एक के ऊपर काम करेगी. तो 5 प्रोजेक्ट मंथ 1 में हो गए. ऐसी M2 सेकेंड मंथ में 5 एंड सो ऑन. तो स्ट्रक्चर शायद ऐसा बनाने का थॉट दे सकते हैं. ये दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज.
Further, what they are saying, T1, T2, T3, T4, T5, these are the 5 teams and they are allotted the challenging project in the first, second, third, fourth, fifth month respectively. तो ये एक अच्छा डेटा दे दिया. हमें ये पता है कि चैलेंजिंग पांच ही है और उनका ऑर्डर भी दे दिया कि कौन सी टीम किस महीने में चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है. सो दे आर हैंडलिंग इन द कंसेक्यूटिव मंथ्स इटसेल्फ. तो मैं अपने लेवल पे कन्वीनियंस के लिए इसके अंदर रेक्टेंगल बना देता हूं कि मंथ 1 टीम 1 विल हैंडल चैलेंजिंग और बचे हुए डैशेस रिप्रेजेंट करेंगे कि स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है. तो मंथ 2 T2, तो जो डायगोनल वाली वैल्यूज हैं उनके अंदर स्क्वायर बॉक्सेस विल हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट दीज आर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स. और हर महीने में बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे कैसे हो जाएंगे, दोस प्रोजेक्ट्स विल टिपिकली बी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो मंथ 5 में फिफ्थ प्रोजेक्ट इज द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, टीम 5 हैंडल कर रही है, वो हमें क्लियर हो जाएगा. दिस इज अ कन्वेंशन दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप ऑन योर ओन. इस तरह की चीजें आप सेट सॉल्व करते रहें, खुद से बिल्ड कर सकते हैं. सो दैट इज वन पार्ट. देन नेक्स्ट लास्ट क्लू ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, द टीम असाइन्ड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज वन मोर एम्प्लॉई देन द रेस्ट. तो अगर फॉर एग्जांपल टीम 1 है यहां पर जिसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट असाइन करा है, तो इसके पास एक ज्यादा एम्प्लॉई है कंपेयर टू रेस्ट. मतलब कंपेयर टू रेस्ट में सबके पास सेम होना पड़ेगा, तभी तो इसके पास एक ज्यादा होगा. आई होप ये क्लियर है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लू, टिपिकल क्यूबीआर वाला क्लू कि बाकी चारों से एक ज्यादा तब हो सकता है जब चारों के पास सेम हो. चारों के पास सेम एक्स मान लिए, इसके पास एक ज्यादा एम्प्लॉई और टोटल एम्प्लॉइज तो हमें पता है 21 है. सो दीज आर द एम्प्लॉइज, भले ही वो स्पेशल स्किल्ड हो या रेगुलर हो, एम्प्लॉइज तो 21 है. तो इन सबको ऐड करें तो कहना से 5x प्लस 1 जो है वो 21 के बराबर है. तो यहां से क्विकली सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4. विच मीन्स व्हाट, जब भी आप किसी मंथ का एलोकेशन करोगे तो यू विल गेट 4 एम्प्लॉइज. यू विल गेट 4 एम्प्लॉइज इन द स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स एंड यू विल हैव 5 एम्प्लॉइज इन द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हर बार. मतलब अब टीम 2 में 5 एम्प्लॉइज हो जाएंगे मंथ 2 में, टीम 3 में 5 एम्प्लॉइज हो जाएंगे मंथ 3 में, टीम 5 में 5 एम्प्लॉइज हो जाएंगे. तो जो भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करता है उसकी टीम में 5 एम्प्लॉइज, जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट करता है उसकी टीम में 4 एम्प्लॉइज. सो दिस पार्ट ऑफ द डेटा फर्स्ट पैराग्राफ इज डन. सो अंडरस्टैंड ओवरवेलमिंग डेटा. अभी तक हम सिर्फ यही समझ पाए कि चैलेंजिंग में कितने टीम मेंबर्स, स्टैंडर्ड में कितने टीम मेंबर्स और किनका एलोकेशन कहां होगा. नाउ फर्दर दे आर सेइंग इन द फर्स्ट मंथ T1 हैज वन मोर SE. SE इज स्पेशल एम्प्लॉय. स्पेशल एम्प्लॉय 10 है. अब स्पेशल एम्प्लॉय के लिए T1 हैज वन मोर देन T2. T2 के बाद T3, T4, T5, इनके लिए SE का कैटेगराइजेशन करते हैं. तो T1 में एक ज्यादा है T2 से, T2 में एक ज्यादा है T3 से, T3 में एक ज्यादा है T4 से, T4 में एक ज्यादा है T5 से. तो T5 को सपोज मैंने P ले लिया, तो T4 हैज वन मोर, तो P+1, दिस इज P+2, दिस इज P+3 एंड दिस इज P+4. तो इन सबको ऐड करेंगे तो स्पेशल एम्प्लॉइज 10 के बराबर होने चाहिए. ऐड करेंगे तो विल गेट 5P प्लस 4 और 3 7 और 2 10 इज इक्वल टू 10. 10 से 10 कैंसिल, P की वैल्यू 0 हो गई. इतना सब करने की जरूरत नहीं थी. इफ यू हैव प्रैक्टिस क्यूबीआर के सेट्स, जैसे ही आपको ये 1 2 3 4 देख रहा है, आपको पता है कि सम 10 है तो P को 0 ही होना पड़ेगा. बट ठीक है, एग्जाम के प्रेशर में हो सकता है इक्वेशन बनानी पड़े, इसलिए आई एक्सप्लेन्ड इट वाया इक्वेशन एज वेल कि P 0 है. मतलब क्या, फर्स्ट मंथ में, दिस इज द डेटा फॉर द फर्स्ट मंथ, पहले महीने में जो यहां पर 5 एम्प्लॉइज हैं T1 के, उसमें से 4 तो स्पेशल वाले हैं. सो द नंबर दैट वी हैव गॉट इज 4 3 2 1 और यहां पर T5 का 0. तो ये जो 5 का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें स्पेशल और रेगुलर स्किल्ड एम्प्लॉइज में आपके पास स्पेशल 4 हैं और रेगुलर 1 है. नाउ लुक एट द डेटा एंड द वे it is structured, it looks very messy, but abhi as I said, this is not the way in which we are going to do. We are we try to understand ki best tarika kya ho, how to figure out the best way to represent. Having understood this, itna to clear hai कि अब मैं जो टेबल बनाऊंगा उसमें स्पेशल और रेगुलर के लिए अलग अलग कॉलम्स बना लूंगा. बट उतना सफिशिएंट नहीं है. उसके बाद आगे वो और क्या बोल रहे हैं, बिटवीन 2 सक्सेसिव मंथ, मतलब मंथ 1 से मंथ 2 जब जाओगे तो composition of the teams changes as follows. The team allotted the challenging project gets 2 SE. तो ये वाला shifting और करने का पार्ट है. तो what I'm going to do is I'm going to keep a lot of spaces in between. भाई यहाँ shifting करनी पड़ेगी, तो मैं एक्स्ट्रा की खाली रोज M1, M2, M3, M4, M5 के बीच में कर लूंगा, क्योंकि अगर शिफ्टिंग की जरूरत भी पड़ी
तो वो इंटरमीडिएट शिफ्टिंग के लिए स्पेस रहे. सो नाउ आई एम वेरी श्योर कि स्ट्रक्चर कैसा रहे. आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दिस. जस्ट रिमेंबर दीज डेटा. इनफैक्ट दैट विल बी समराइज्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड कि 10 स्पेशल एम्प्लॉइज, 11 रेगुलर एम्प्लॉइज, 5 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो डायगोनल में चलेंगे, रिमेनिंग स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स. चैलेंजिंग वाले में 5 टीम मेंबर, रेगुलर वाले प्रोजेक्ट्स में 4 टीम मेंबर्स. और फर्स्ट मंथ का डेटा अवेलेबल है. फर्स्ट मंथ में 43210 ऐसे स्पेशल एम्प्लॉइज है. जो 10 स्पेशल एम्प्लॉइज है उनमें टीम 1 में 4, टीम 2 में 3. ये 4321 हमने पी की वैल्यू से कैलकुलेट करके निकाल लिया था फ्रॉम दिस डेटा दैट T1 हैज वन मोर स्पेशल एम्प्लॉय. तो इतनी समरी के बाद द स्ट्रक्चर दैट आई एम गोइंग टू यूज इज गोइंग टू बी लाइक दिस. तो मैंने मंथ के एज आई सेड स्पेसेस अलग से ऐड कर लिए M1, M2, M3, M4, M5 में, जिससे अगर शिफ्टिंग करनी हुई तो बड़ी कन्वीनियंटली हम शिफ्टिंग कर पाए. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हमने इतना डेटा निकाल लिया है कि फर्स्ट मंथ, और पहले तो मैं हाईलाइट कर दूं चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स का जो कन्वेंशन हमने बोला था कि चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं. सो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मंथ 1 में T1 के पास है. सो T1 के पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है. दिस इज अ हाईलाइट. मे बी आई विल यूज अ डिफरेंट कलर. ठीक है. सो दिस इज द डेटा फॉर चैलेंजिंग M1. फिर अगली बार M2, फिर M3. M3 के जो एम्प्लॉइज हैं ये 5 होने चाहिए टोटल. फिर M4 में दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी 5 इन नंबर. एंड फाइनली M5 विद T5. सो ये जो डायगोनल में आपको वैल्यूज दिख रही हैं इनका टोटल 5 होना चाहिए. बाकी सब जगह रोज में टोटल 4 होगा. अब हमें यह भी पता है कि T1 में 4 स्पेशल एम्प्लॉय थे और टोटल 5 एम्प्लॉइज हैं बिकॉज ये चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो रेगुलर 1 होगा. और ऐसे T2, T3, T4 के स्पेशल एम्प्लॉइज हमें पता है फर्स्ट मंथ के फ्रॉम द प्रीवियस डेटा. तो आई एलोकेट देम 4, 3, 2, 1 और 0. यहां तक कोई आई होप इशू नहीं है. और हमें पता है बाकी T2 से T5 में हर एक में 4-4 एम्प्लॉइज हैं. तो 3 में क्या ऐड करेगी, 4 बन जाए 1. टीम 3 में 2 में क्या ऐड करेगी, बन जाए 4, 2, 1, 3, 0 एंड 4. तो पहले मंथ में जो स्ट्रक्चर आएगा टीम्स का वो आई होप क्लियर हो गया. इतना डिटेल में मैं इसलिए समझा रहा हूं सो दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर एज टू व्हाट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. एग्जाम में you will do this very very quickly and maybe slightly in a more chaotic manner. तो इतना structured, इतना clean तो नहीं दिखेगा. मैंने जब अपनी रफ शीट में करा तो it was completely chaotic. So I'll be very honest, I got stuck because of my own messiness in the rough sheet, which is normal and natural. तो अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो please do not panic, which is okay. But once you've done it, एक बार कर लिया है तो फिर अगली बार के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेके चलें कि शायद डेटा बेटर स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकता है. So this is the data for the first month. Now they are saying between 2 successive months, the composition of teams changes as follows. कैसे team change होगा? The team allotted the challenging projects gets 2 SE from the team which was allotted the challenging project in the previous month. Simple करें. Think of it this way. सेकेंड मंथ में टीम 2 के पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आना है. विजुअलाइज योरसेल्फ कि आप टीम 2 का हिस्सा हो. आप ऑफिस में काम करते हो, आप टीम 2 का हिस्सा हो और अगले महीने सेकेंड मंथ में आपके पास चैलेंजिंग आने वाला है. सेकेंड मंथ आ गया, आपके पास चैलेंजिंग आने वाला है. तो अब रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट क्या है कि टीम अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट गेट्स 2 SE फ्रॉम द टीम विच वाज अलॉटेड चैलेंजिंग अर्लियर. तो आप टीम 2 हो, टीम 1 के पास पिछले महीने चैलेंजिंग था, तो आप बोलोगे यार तुम्हारे 2 स्पेशल एम्प्लॉय हमारे पास भेज दो, हम यहां से एक रेगुलर तुम्हारे पास भेज देंगे. In exchange, 1 RE is shifted from the former team to the latter team. ये मेंटल पिक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज हैव दिस इन योर बैक ऑफ द माइंड कि हमें शिफ्टिंग कैसे करना है. टीम 1 से टीम 2 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट शिफ्ट होगा फर्स्ट मंथ से सेकेंड मंथ डायगनली. और यहाँ पे टीम 2 क्या रिक्वेस्ट करेगी कि भाई तुम्हारे 2 स्पेशल एम्प्लॉय हमें दे दो, इन एक्सचेंज हम एक रेगुलर एम्प्लॉय तुमको शिफ्ट कर देंगे. दैट इज द डेटा. अब ये पहला स्टेप है. अब अगर ये पहला स्टेप है तो लेट्स डू दिस एंड विच इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस एक्स्ट्रा स्पेस एट द बॉटम कि इन पहली स्टेप में क्या करोगे, T1 से T2 शिफ्ट करना है आपको 2 SE. तो यहाँ 4 की जगह कितने हो जाएंगे, 2. यहां से 2 एम्प्लॉय शिफ्ट हो गए कहां, टीम 2 में. तो यहाँ 3 थे, यहाँ कितने हो जाएंगे, 5. 3 की जगह 5 हो गए. और यहाँ का एक रेगुलर था वो टीम 1 शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ 0 हो गए रेगुलर और यहाँ कितने हो गए, 2. ये पहला स्ट्रक्चर समझ में आया. बाकी किसी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहे, हम बचे हुए में 2, 2, 1, 3, 0, 4 एज इट इज रख रहे हैं जैसा इनिशियल डेटा था. बट दिस वाज जस्ट ए पार्ट. देन दे आर सेइंग
After the above exchange, if T1 has any SE and T5 has any RE, then one SE shifted from T1 to T5 and one RE shifted from T5 to T1. अब थोड़ा सा अगेन ओवरवेलमिंग डेटा, एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना इज नॉट इजी. समबडी सेज ये इजी सेट था, तो आई वुड से दे आर बिहेविंग एज एक्सपर्ट्स एंड नॉट रियली थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स. तो इजी सेट नहीं है कहीं से कहीं तक इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल, टाइम कंजम्पशन है. अब शिफ्टिंग बहुत ईजी हो जाएगी वंस यू अंडरस्टूड द क्लू, बट एग्जाम के प्रेशर में समझना, ऐसे एक्सचेंज के बाद इंटरमीडिएट एक्सचेंज कर दिया, अब ये बोल रहे हैं T1 के पास अगर कोई ऐसी है, क्या T1 में ऐसी है, यहाँ दो एसीज हैं बिल्कुल, और T5 में कोई आ रही है, हाँ 4 आ रही हैं. सो दे आर सेइंग अगर T1 में ऐसी बचा हो, स्पेशल एम्प्लॉय बचा हो, T5 में रेगुलर एम्प्लॉय बचा हो, तो उनके बीच एक्सचेंज कैसे होगा? T1 से एक ऐसी T5 जाएगा और T5 से एक आरी T1 आएगा. तो अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहूं तो आई से T1 से T5 एक शिफ्ट होगा एसी का और T5 से T1 शिफ्ट हो जाएगा आरी का. वन एम्प्लॉई विल गेट एक्सचेंज, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल विल रिमेन सेम. एक दिया एक लिया, एक एसी दिया एक आरी लिया. कब? जब इसके पास एसी हो, जब इसके पास आरी हो, और विच इज एक्सेप्टेबल बिकॉज अगर जीरो हो गए तो फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ आरी ट्रांसफर कर दिया, भाई बराबर बराबर टीम साइज रखनी है. तो when you will have that opportunity you will do an exchange. अगर जीरो हो गए तो नहीं करोगे. Now also if T2 has any SE and T4 has any RE, then one SE is shifted, which means T2 T4 के लिए भी सेम सिनारियो है. T2 से T4 जाओगे तो आपको एक SE शिफ्ट कर देना है और T4 से T2 एक RE शिफ्ट कर देना है. Let's do that. अब मैं T1 से एक SE वहां भेज रहा हूं, तो T1 में SE कितना बचेगा? मंथ 2 की स्टार्टिंग में एक, और T5 में एक SE बढ़ जाएगा तो SE यहां आ गया. और आपको रिवर्स स्वैप करना है, आरी यहां 4 थे उसकी जगह कितने बचेंगे? 3, और यहां आरी एक बढ़ जाएगा तो यू विल गेट 3 आरीज हियर. ये हमने T1 T5 का करा है. T2 T4 के लिए भी सेम चीज करना है, सेम डेटा फॉर T2 T4. सो ऑल्सो इफ T2 हैज एनी एसी, T4 हैज एनी आरी, सेम टू सेम चीज. ऐसी है इसके पास बिल्कुल, तो यहाँ ऐसी कितने हो जाएंगे? 1 कम 4, और ये यहां पर एक ऐसी बढ़ जाएगा विच इज हाउ मेनी एसीज? 2. यहां पर एक आरी कम, एक आरी कम मतलब रेगुलर एम्प्लॉयज 2 हो जाएंगे, और T2 में रेगुलर एम्प्लॉय एक बढ़ जाएगा, तो दैट इज 4-1. टीम 3 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, 2 के 2 एम्प्लॉयज, 2-2 का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है. सो अगेन यू विल सी 5 एम्प्लॉयज हियर, 5 एम्प्लॉयज हियर. जो भी ग्रीन बॉक्सेस है उनमें 5 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है और बाकी सबका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा. अब ये सक्सेसिव मंथ्स का अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट क्विकली फिल दिस टेबल. तो आप पहले क्या करोगे? टीम 2 से टीम 3 3 तरह के स्वैप्स हैं, एक तो ये और एक स्वैप, ये 2 कैटेगरीज ये, और एक चैलेंजिंग का जो शिफ्ट है, प्रीवियस मंथ में जो चैलेंजिंग था और नेक्स्ट मंथ में जो चैलेंजिंग आ रहा है उनके बीच का स्वैप. 3 तरह के स्वैप्स या एक्सचेंज एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो यहां पे स्वैप कैसे होना था? 2 एसी कम होंगे, सो टीम 2 में 2 एसी कम होंगे और एक आरी बढ़ जाएगा तो 2-2 हो जाएगा. 4 से 2 हो गए और एक आरी बढ़ गया. अब टीम 3 पे जब आप जाओगे, बिकॉज टीम 3 को अब चैलेंजिंग प्रोजेक्ट लेना है, तो 2 एसी बढ़ गए. जो यहां से हमने 4 के 2 एसी कम करे हैं वही टीम 3 के पास जाएंगे, बिकॉज टीम 3 इज नाउ गोइंग टू टेक द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट. सो 2 से 2 बढ़ा दिया, दिस इज 4, एंड यहां आरी एक कम कर दिया तो दिस इज 1, तो 4 + 1 5, ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा. दिस इज फॉर टीम 3. अब ये हमने चैलेंजिंग का स्वैप कर लिया, चैलेंजिंग के अलावा अभी और कोई स्वैप नहीं है, तो मैं बाकी सारी वैल्यूज 1-3 और 2-2 1-3 एज इट इज लिख देता हूं. नाउ वेरी क्विकली लुक एट T1 T5 का स्वैप एज वेल एज T2 T4 का स्वैप. तो यहां 1 ऐसी है, ये 0 हो जाएगा, और इसके पास एक आरी बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहां एक ऐसी बढ़ जाएगा, एक आरी कम हो जाएगा तो 2 ईच. सेम चीज T2 T4 के स्वैप में, एक ऐसी कम, सो दिस इज 1, एक आरी बढ़ जाएगा तो 1-3. यहां पर एक ऐसी बढ़ जाएगा 3, एक आरी कम हो जाएगा 1, एंड दिस 4-1 रिमेन सेम एज इट इज T3 के लिए. अब T3 से T4 का स्वैप करना है, 2 ऐसी कम होंगे बिकॉज 2 स्पेशल एम्प्लॉय यहां जाएंगे, सो 4 में से 2 गए, 2 बचे, और एक आरी क्या होगा? 2 ऐसी चले गए, एक आरी मिल जाएगा इसको, तो एक आरी मिल जाएगा मतलब कितने हो गए? 2 और 2 4, और ये टीम 4 को मिलेंगे तो 2 एम्प्लॉय मिल गए स्पेशल वाले, और एक आरी वाला चले गया 0. रिमेनिंग में कोई चेंज नहीं है, 0 4 1 3 और 2 2. नाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू डू T1 से T5 का स्वैप. इज दिस अलाउड? नो, बिकॉज यहाँ ऐसी है ही नहीं, और अगर ऐसी है ही नहीं तो कहना है T1 वाला टीम 1 का कॉम्पोजिशन विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि अब हर बार T1 का T5 से स्वैप होना है,
चैलेंजिंग तो T4 T5 में होना है, सो देयरफॉर 0404 ये तो एज इट इज फिल कर देते हैं। T1 T5 का स्वैप नहीं हो पा रहा भाई। अब हम चेक करते हैं T2 T4 वाला स्वैप। T2 से T4 जब स्वैप करोगे तो T4 में SE एक है, आपको एक SE दे देना है, मतलब T4 में SE 0 हो जाएंगे और एक RE लेना है 4 हो जाएंगे। T4 में चेक करते हैं, T4 में एक SE दे दिया किसको, T4 से T2 से T4 when you will go, बट T2 से T4 एक्सचेंज पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज RE यहां से यहां शिफ्ट करना अलाउड नहीं था, सो दिस एक्सचेंज ऑल्सो विल नॉट हैपन, सो यू विल हैव 1 3 का डेटा एज इट इज। T2 से T2 का 1 और 3 रहेगा, यहां पर T4 का भी 5 और 0 ही रहेगा, 5 एम्प्लॉइज हैं, एंड T3 विल रिमेन एज इट इज 2 2, तो देयर इज नो चेंज, दिस रिमेन्स एज इट इज 2 2। कोई चेंज नहीं हो पाया क्योंकि यहां 0 थे, तो T1 T5 का नहीं हो पाया। T4 में RE 0 थे, तो RE और T2 के साथ एक्सचेंज नहीं हो पाया, बिकॉज 0 से आप इधर एक RE कैसे भेजते, तो नो चेंज एज इट इज। अब T4 से T5 भेजना है, तो यहां से 2 SE कम होंगे, तो यू विल गेट 3 हियर, एक RE बढ़ेगा 1, यहां 2 SE बढ़ेंगे, 2 SE बढ़ेंगे मतलब 4 हो जाएंगे, और एक RE कम होगा तो 1 होगा। यहां रिमेनिंग का डेटा एज इट इज फिल कर देते हैं, बिकॉज अभी हमने सिर्फ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट वाला जो स्वैप है वो कंप्लीट करा है। नाउ फाइनली T1 से T4 वाला स्वैप नहीं हो पाएगा अभी भी, T5 वाला स्वैप नहीं हो पाएगा, सो T5 में कोई चेंज नहीं आना है, दिस इज गोइंग टू बी एज इट इज 4 1, बट T2 T4 का स्वैप डेफिनेटली कर सकते हो। T3 पे कोई इंपैक्ट नहीं आना है, T3 के 2 2 एज इट इज। यहां का जो 1 एम्प्लॉई है वो शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 0, यहां एक RE बढ़ जाएगा 4, यहां पे एक SE बढ़ जाएगा, so you'll get 4, और यहां एक RE कम हो जाएगा, so you'll get 0. So this is the final distribution, and believe me, this is very time consuming. Whichever way you may want to do it, for even good students, this is time consuming. If some of you have been able to solve it very very quickly, fabulous. But अभी हमने ये स्ट्रक्चर कर लिया है कि डेटा कहाँ कैसे आएगा, फॉर अक्रॉस 5 months आप कैसा भी क्वेश्चन आए विल बी इजीली एबल टू सॉल्व इट। अभी तक हमने क्रेडिट पॉइंट्स वाला जो सिनेरियो है उसको बिल्ड नहीं करा है। एक क्वेश्चन क्रेडिट पॉइंट्स को लेकर है, तो विल टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स व्हेन दैट क्वेश्चन कम्स। अभी के लिए वी कैन मूव टू द क्वेश्चंस एंड स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे। So this is the table that we have already solved. The number of times in which the composition of team T2 and the number of times in which the composition of team T4 remain unchanged in 2 successive months. तो कोई से 2 मंथ में टीम का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। T2 के लिए ऑब्जर्व करते हैं, T2 के लिए 3-1 थी मंथ 1 में टीम, फिर 4-1 चेंज हो गया, 1-3 चेंज हो गया, 1-3 चेंज नहीं हुआ, 0-4 चेंज हो गया। मतलब यहां से यहां एक ही इंस्टेंस ऐसा है जहां कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ, तो T2 के लिए तो 1 आएगा। अब 1 2 ऑप्शंस में या तो B और D, तो ये T2 के लिए था। अब T4 के लिए चेक कर लेते हैं, करेक्ट। T4 के लिए चेक करना है कंपोजिशन ऑफ टीम T4। T4 के लिए 1-3 था, 1-3 से 2-2 चेंज हो गया, 3-1 चेंज हो गया, 5-0 चेंज हो गया, 4-0 भी चेंज हो गया, विच मीन्स कंसेक्यूटिव मंथ्स हर बार ही चेंज हो रहा है, तो ये डेटा इज 0, 1,0 चॉइस B becomes the answer. The number of SE in T1, number of SE in T1 for the projects in the 3rd month. T1 3rd month SE थे 0, तो 0 आना चाहिए, 0 2 ऑप्शंस में। और किसका पूछना है? T5 का। T5 टीम 5 के मंथ इसमें SE थे 2, तो 0,2 करेक्ट आंसर विल बी चॉइस A. So first 2 questions are done, and then let's look at the next 2 questions. Which of the following cannot be the total credit points? Now remember, credit points का अभी तक हमने कुछ भी डिस्कशन नहीं करा है, तो let's come back and understand what was the clue about credit points. Credit points के बारे में क्या clue था वो quickly देख लेते हैं. So they are saying each standard project has a total of 100 credit points, while each challenging project has 200 credit points. And the credit points are equally shared between the employees included in that team. तो एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। चैलेंजिंग में हमारे एम्प्लॉइज कितने थे? 5। कोई भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसमें 5 एम्प्लॉइज है, और वो इक्वली बटेंगे, 200 पॉइंट्स बटेंगे 5 लोगों में। तो कैन आई से 200 डिवाइडेड बाय 5, आई विल गेट 40 क्रेडिट पॉइंट्स इफ आई एम एन एम्प्लॉय इन द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट वाली टीम। मैं चैलेंजिंग प्रोजेक्ट वाली टीम में हूं, मुझे 40 क्रेडिट पॉइंट मिल जाएंगे।
पर 100 क्रेडिट पॉइंट्स ही हैं जब वो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट में कितने एम्प्लॉइज हैं? 4, तो 100 को 4 से डिवाइड करा, मुझे कितने क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे? 25। तो अगर मैं अपने पूरे साइकिल में 5 प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूं, बिकॉज दैट इज व्हाट दे हैव सेड दैट एवरी एम्प्लॉय वर्क्स इन 5 डिफरेंट मंथ्स अक्रॉस 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, तो मैं 5 प्रोजेक्ट्स में काम करूंगा। हो सकता है उनमें से मेरे 2 स्टैंडर्ड हो, 3 चैलेंजिंग हो, 4 चैलेंजिंग हो, 1 स्टैंडर्ड हो, 5 चैलेंजिंग हो, समथिंग लाइक दिस, मुझे नहीं पता। पर इनका कॉम्बिनेशन मिलेगा, कुछ से मुझे स्टैंडर्ड वालों से 25 पॉइंट मिलेंगे और चैलेंजिंग वालों से 40 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन 3, विच इज टोटल क्रेडिट पॉइंट्स क्या नहीं हो सकते, कैन नॉट बी द क्रेडिट पॉइंट्स अर्न बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स। अब मैं बोल रहा हूं अगर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए x क्रेडिट पॉइंट्स हैं, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स के लिए y क्रेडिट पॉइंट्स हैं, तो मुझे स्टैंडर्ड में 25 मिल रहे हैं 100/4 से, और चैलेंजिंग के लिए कितने मिल रहे हैं? 40 क्रेडिट पॉइंट्स 40y। दिस नंबर कैन नॉट बी, ये हमसे पूछा है। अच्छा, x और y का ग्रैंड टोटल कितना होगा? 5। या तो चैलेंजिंग, पांचों के पांचों चैलेंजिंग कर लिए, या 4 चैलेंजिंग करके एक स्टैंडर्ड कर लिया, समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं x0 लूं, सारे चैलेंजिंग ले लूं, तो x0 और y5, x0 y5 के लिए मुझे यहां पर वैल्यू कितनी मिल जाएगी पॉइंट्स की? 200 क्रेडिट पॉइंट्स। अगर मैंने, और ये ऊपर ही लिख देते हैं, सो दिस इज क्रेडिट पॉइंट्स, तो क्रेडिट पॉइंट्स मिल गए 200। अगर मैंने 1/4 का डिस्ट्रीब्यूशन लिया होता तो क्या होता? 44 160 और 25 185 मिलते। कैन आई से 15 का गैप है, तो 200 185 फिर 170 155, डिपेंडिंग है मैं कितने चैलेंजिंग कितने अदरवाइज प्रोजेक्ट्स ले रहा हूं, उसके हिसाब से इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। सो 200 इज पॉसिबल, 170 इज पॉसिबल, 140 इज ऑल्सो पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल क्रेडिट पॉइंट्स? 150। अगेन अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, क्योंकि स्पेशल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है और फिर डिटरमाइन करना पड़ रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्रेडिट पॉइंट्स को लेकर इतना ही था, तो जो आखिरी का पैराग्राफ था उससे एक क्वेश्चन हो रहा, उतनी इंफॉर्मेशन। वन ऑफ द एम्प्लॉइज नेम्ड अनीक स्कोर्ड 185 पॉइंट्स। 185 पॉइंट्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और 4 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो नाउ दे आर आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं हो सकता? अनीक वर्कड ओनली इन टीम्स। तो प्रोजेक्ट तो 5 करने, लेकिन वो सिर्फ 4 टीम में काम करेगा। कौन कौन से? T1 T2 T3 T4। क्या ये पॉसिबल है? थिंक ऑफ इट दिस वे कि पहले उसने T1 पे काम करा, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था मंथ 1 डायगोनल्स को मैं फिर हाईलाइट कर दूं, डायगोनल्स आर योर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? दिस पर्सन अनीक हैज वर्कड इन T1, फिर T1 से T2 पे गया, भी चैलेंजिंग में शिफ्ट होता ना, 2 ऐसी यहां से यहां चले जाते हैं, तो T1 से T2 चला गया, फिर T3 चला गया, फिर T4 चला गया, तो इन 4 में काम करा। अब जब स्वैप हुआ है तब वो शिफ्ट नहीं होता है, वो यहीं रहता है, वो T4 का T4 में ही रहता है। तो क्या वो सिर्फ 4 टीम्स में काम कर सकता है? वो जब 5वीं टीम के लिए शिफ्ट करना हुआ उन 2 एम्प्लॉइज का हिस्सा नहीं था। तो इज दिस पॉसिबल? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू? दिस कैन बी ट्रू, सो ये हमारा आंसर नहीं है। वर्कड इन ओनली टीम्स T1 T2 T4 T5। क्या T1 T2 T4 T5 में काम कर सकता है? T1 में काम करा, स्वैप हुआ, T2 में गया, T2 से T4 जा सकते हैं क्या? T3 नहीं जाना। देखो T1 T2 के बाद T4 पे भेजना है कि T4 पे चला गया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो T4 पे चले जाए? यस। T2 T4 का स्वैप अलाउड है। रिमेंबर 3 तरह के स्वैप थे, एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट वाला स्वैप था, एक T1 से T5 वाला स्वैप था 2 वे, जहां पे SERE वाले एक्सचेंज हो रहे हैं, T2 से T4 वाले स्वैप अवेलेबल है। तो T2 से T4 चला जाएगा, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। T4 पे गया, फिर T5 पे रुक गया और 5वां प्रोजेक्ट भी T5 में ही कर लिया, एंड सो ऑन। T2 से T3 T4 T5, लास्ट प्रोजेक्ट भी T5। तो कंसेक्यूटिव तो कोई दिक्कत नहीं है, चैलेंजिंग वाले रूट से ही हो जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो ये आंसर नहीं है, देयरफॉर आंसर तो ये है, पर ये चेक करते हैं ये पॉसिबल क्यों नहीं है। अगर आप सिर्फ इन 4 टीम्स में अनीक को काम करवाते हो, he's worked only in these teams T1 T3 T4 T5, then imagine T1 पे उसने काम करा, स्टार्टिंग में T1 ले लिया, अब वो T3 पे कैसे जाएगा? T1 से T3 का तो एक्सचेंज है ही नहीं, T3 पे कैसे जाएगा? हाउ विल यू एक्सपेक्ट हिम टू वर्क इन T3 अगर वो T1 पे काम कर चुका है? तो बोलोगे सर T1 से T3 का तो शिफ्ट अलाउड ही नहीं है, T1 से T2 जा सकता था बिकॉज नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट T2 का था, T1 से T5 जा सकता है, पर T5 चला गया तो T5 से T4 थोड़ी आता है, T5 से वापस T1 आता है, which means in this case the employee will
कीप ऑन स्वैपिंग बिटवीन T1 T5 T5 T1 T1 T5 एंड सो ऑन, वो T3 पे कैसे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा. And therefore T1 का T3 के साथ combination directly without going to T2 is not possible. So this is our answer, that this cannot be true that he has worked only in teams T1, T3, T4, T5. This is also a difficult question. So understand, definitely not worth it from the point of view of return on investment. If you have watched it so far, excellent लर्निंग एक्सपीरियंस कि इस तरह के ओवरवेलमिंग डेटा वाले सेट्स आएंगे तो वो हमें एग्जाम में नहीं करने हैं. वी हैव टू पिक द सेट्स जहां पे फेट फ्रेमवर्क में चारों जगह टेक आ रहा है, 3 जगह टेक आ रहा है, हमारा कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है. गेट दो सेट्स डन, गेट द नंबर्स इन द बैंक एंड गेट एज हाई अ परसेंटाइल एज पॉसिबल. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई टेक अ लीव. Sure.